हाँ जी बच्चों, हमने फिजिक्स का 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था। हम लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्कोप टॉपिक देखा था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डिस्कस करेंगे। एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, classification of material on the basis of flow of charge can be done into four parts: metal or conductor, insulator, semiconductor and superconductor. First we discuss what are the metals. In metals the charges can be flow easily. It means when you give slightly energy, external energy, the electrons get excited and the conduction of current starts. So first point is metals which allow the flow of charges easily. Charges flow easily, it means what? Resistance of the metal is low. As we know, resistance opposes the flow of current. And what is current? It is a flow of charge, rate of flow of charge. So when we say the charges can be flow easily, it can be possible only when resistance is low. Okay, so if resistance is low, then charges can be flow easily, and it happens in metal or conductor. Next point is at suitable energy the electron leaves the atom and become the free electron, and free electron will be participation in the conduction. Examples: human, animal body, metal, electrolyte are the examples of the conductor. All metals will be come in the category of conductors. Next is insulator. As we know, insulator doesn't allow the flow of charge easily. Okay, insulator doesn't allow the flow of charge easily. यानी इसमें चार्जेस फ्लो तो हो सकते हैं लेकिन इजीली नहीं हो सकते. आई विल गिव एन एग्जांपल कि सर इजीली कैसे, और अगर हम ज़्यादा उसको एनर्जी दे देंगे तो आपका इंसुलेटर में भी चार्ज फ्लो हो जाएगा. रेजिस्टेंस ऑफ द इंसुलेटर इज हाई. यस सर, दैट इज द रीजन चार्जेस कैन नॉट बी फ्लो इजीली. एग्जाम्पल: प्लास्टिक, पोर्सिलिन, वुड, ग्लास आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर. नाउ व्हाट आर द सेमीकंडक्टर्स? एज द नेम इंडिकेट सेमीकंडक्टर यानी आधा कंडक्टर. तो आधा क्या होगा फिर? वो इंसुलेटर होगा. इट मीन्स द सेमीकंडक्टर्स आर द मटेरियल विच कैन वर्क एज मेटल एंड इंसुलेटर बोथ. ओके, यानी सेमीकंडक्टर है जो मेटल और इंसुलेटर दोनों की तरह काम कर सकता है. इट हैज प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल एंड इंसुलेटर. रेजिस्टेंस मेटल से कम होगा लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा होगा. कंडक्टिविटी, ओ सॉरी, इंसुलेटर से कम होगा, मेटल से ज्यादा होगा रेजिस्टेंस. ओके, कंडक्टिविटी भी इन दोनों के बीच की होगी, यानी इट इज अ इंटरमीडिएट बिटवीन द मेटल एंड द इंसुलेटर. एट 0 Kelvin semiconductor act as an insulator, and when you give the room temperature, that is 300 Kelvin, it will show properties of the metal. The semiconductor will be learned in 14th chapter of the physics of 12th class, where you learn semiconductors are of two types: direct band gap and indirect band gap. And indirect band gap is again divided into two types, that is intrinsic and extrinsic. And again extrinsic is divided into two types, n type and p type. So this will be covered in 14th chapter in detail. Examples is germanium and silicon. Now one more category, although this is not commercially available, a superconductor. As the name indicates, superconductor. Superconductors are the material in which resistance is zero. As we know, all the material has a resistance. Okay, किसी भी चीज का रेजिस्टेंस हम जीरो नहीं कर सकते. ठीक है, ये इस पॉइंट के अकॉर्डिंग कि सुपर कंडक्टर्स वो होंगे जिनका रेजिस्टेंस जीरो होगा. देखिए नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज नॉट कमर्शियली अवेलेबल. ओके, वर्क अभी चल रहा है इस पर. इन सेमीकंडक्टर देयर इज नो हीट लॉस एंड नो ओमिक लॉस.
because both type of losses, whether it may be heat loss or ohmic loss, it depends on the resistance, and when we say resistance is zero, there will no loss, but it is not commercially available. Okay, so we have to cover these 3 points, these 3 division: metal, insulator and semiconductor. Okay, now I would like to ask, अच्छा ओके, एक और पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ इंसुलेटर से. देखिए, हम लोग जब टेस्टर होता है जिससे हम हमारे घर में ये देखते हैं कि करंट आ रहा है या नहीं आ रहा. ओके, तो टेस्टर में आपने देखा होगा, आप उस टेस्टर को जब अपने घर के स्विच में इंसर्ट करेंगे तो आपको एक लाइट ब्लिंक होती हुई दिखेगी, और आप या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे उसको आप टच करेंगे तो यू विल फाइंड कि यस सर लाइट जल रही है, करंट इज देयर. बट सपोज वही इंसुलेटर ही है, वो आपने जो पकड़ा हुआ है उसका है ना, प्लास्टिक का बना हुआ होता है जो, लेकिन वही अगर मैं टेस्टर को हाई टेंशन लाइन पे जाके टच करूंगा तो क्या होगा, इंसुलेटर होते हुए भी वो क्या होगा, बिकॉज आपने उसको बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी दे दी, तो वो इंसुलेटर भी क्या हो जाएगा, वो कंडक्टर बन जाएगा, और जो आपके हाथ में टेस्टर है वो तो उड़ ही जाएगा, बिकॉज वो बर्न हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वो इंसुलेटर रहा ही नहीं, आपने क्या किया, उसके कैपेसिटी से ज़्यादा उसको चार्ज दे दिया. ओके, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर ह्यूमन बॉडी एंड एनिमल बॉडी, देखिए, इफ आई रब माई हेयर विद द कॉम एंड द कॉम इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, सपोज ये कॉम है, इसको ये प्लास्टिक का बना हुआ है, और जब मैंने इसको अपने ड्राई हेयर्स पे रब किया तो हमने ये डिस्कस कर रखा है कि इस पे चार्ज आ जाएगा, कॉम पर चार्ज आ जाएगा, और वो चार्ज क्या होगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा कहाँ पर, प्लास्टिक के कॉम पर. सपोज वही कॉम्ब अगर किसी मेटल का बना हुआ होता तो क्या उस पर चार्ज एक्यूमुलेट होता, इकट्ठा होता? तो आंसर विल बी नो, उस पर जो है वो चार्ज इकट्ठा नहीं होता. रीजन इज व्हाट, देखिए, अगर ये कॉम्ब किसी मेटल का बना होता, फॉर एग्जांपल आयरन का बना हुआ है, तो जब मैंने इसको रबिंग करा, इसको अपने हेयर से रब किया, तो चार्ज इससे आया. अब सिंस इट इज मेड अप ऑफ मेटल, तो चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और वो फ्लो होके हमारी बॉडी, बिकॉज वी आर ऑल्सो कंडक्टर, तो वो हमारी बॉडी से होता हुआ कहाँ चले जाएगा, ग्राउंड में, डेट इज कॉल्ड अर्थिंग, अर्थ में चले जाएगा, है ना, बिकॉज अर्थ इज ऑल्सो कंडक्टर. सो हम क्या कहेंगे कि अगर कोई कॉम आयरन का बना हुआ है तो उस पर चार्ज इकट्ठा नहीं रहेगा, वो चार्ज क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा थ्रू अवर बॉडी. लेकिन इफ अ कॉम्ब इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, तो उस पर वो चार्ज आ जाएगा एंड इट इज एबल टू अट्रैक्ट द स्मॉल पीसेज ऑफ द पेपर. इज इट ओके? तो ये भी ध्यान रखना आप. दिस इज द टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और आप इसको नोट भी कर सकते हैं.